Environmental movement. Environmentalist movement are organized social activities directed toward the sustainable use of its natural resource, prevention of environmental degradation, and for the environmental restoration. According to Dr. Robert Nisbet, it is entirely possible that environmental movement shall be the most important social movement of the period. There are no passenger, no space, no ship, no earth. We all are a crew member. Marshall Norman. The problem of environmental degradation can be seen from different perspectives. Religion has paid a little attention toward the problem of the environmental degradation. इन्वामेंटल जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज सोशल एक्टिविटी है सस्टेनेबल रिसोर्स के लिए और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और रॉबर्ट निस्बेट कहते हैं कि पॉसिबल है कि हमें सारे हर प्रयास करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को बचा सके। और मार्शल नोमन कहते हैं कोई भी पैसेंजर कोई भी शिप नहीं है, हम सभी इस अर्थ धरती के क्रू मेंबर, हमें बचाना चाहिए। जो रियलिज्म वाले होते हैं वो कम अटेंशन पे करते हैं इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ। It is more concerned with survival than the sustainability. They justify the perspective on the basis of law of nature. For them, nature is red in tooth and claws. Therefore, they justify words as a resource. Or even the liberal perspective says that nature provides a resource to satisfy human need. They support the John Locke theory of property. For them, nature has economic value in the market economy. However, from the Gandhian perspective, it has been argued that nature has enough for the human need, but not for enough ह्यूमन ग्रिड। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के लिए जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारे जो नेचर ने प्रोवाइड किया हमारे नीड्स के लिए प्रोवाइड कर रखा है पूरा कर सकते हैं। और जो जॉन लॉक का कहता है थ्योरी प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू और मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। गांधी पर्सपेक्टिव कहते हैं कि नेचर ने हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए पूरा की पूरी वो इनफ है, परंतु ग्रिड के ह्यूमन ग्रिड के लिए कुछ भी इनफ नहीं है। Eco-feminist perspective believes that there is an essential bond between woman and nature. While women are the creature of the nature, man the creature of the culture. For them, environmental degradation is inevitable consequences of the patriarchal power. Evolution of the environmentalism. The problem of environmental degradation started from the Industrial Revolution. However, the environmentalism was not a major concern till 1960. इको फेमिनिस्ट का मानना है कि जो एक बॉन्ड है वुमन और नेचर के बीच में, जो वुमन है क्रिएचर ऑफ नेचर है और जो मैन है क्रिएचर ऑफ द कल्चर है, इसलिए हमने दोनों को बचाना चाहिए, पैट्रियार्कल पावर से बाहर निकल चाहिए। और बात इवोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटलिज्म है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेवोल्यूशन के टाइम से ये हमारा डिक्लाइन चल ही रहा है एनवायरमेंटलिज्म के बारे में, ठीक है। In 1962, Rachel Carson published The Silent Spring, highlighting the negative consequences of the fertilizer and pesticide on the human and animal. Then similar observations were given in the book Our Synthetic Environmental, authored by the Murray Bourke. In 1970 onwards, environmentalism became important for global politics because the effort of NGOs like Greenpeace International and a Friend of Earth. The 1987 Brundtland Report was published. In this report, titled Our Common Future, sustainable development was defined as development that met the need of present generation without compromising the requirement for the development of the future generation. रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर। उससे में ऑब्जर्वेशन पे एक दूसरी बुक थी और सिंथेटिक एनवायरनमेंट, वो जिसके ऑर्डर थे मोरे बॉकिन थे। 1970 में एनवायरमेंटलिज्म एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स बन गया था। एफर्ट थे लाइक एनजीओ जैसे कि ग्रीन इंटरनेशनल पीस के, अर्थ फ्रेंड ऑफ अर्थ के। 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट आती है जिसके टाइटल है आवर कॉमन फ्यूचर। जैसे उन्होंने बताते हैं कि डेवलपमेंट प्रेजेंट हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो प्रेजेंट जनरेशन उसका नीड पूरी कर दे और फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें कुछ डेवलपमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए। It has been observed that the common concern for environmentalism has been trapped in the global politics across the North and South divide, developed and developing countries. The issue of the climate change is a classical example of tragedy of the common, where each country wants to be the free rider while the North highlights the total emission, the South focus on emission per person. इसके बारे में बात करते हैं कि कंसर्न इन्वायरमेंटलिज्म ग्लोबल पॉलिटिक्स है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड देखने को मिलता है।
डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बारे में, ठीक है। एक क्लासिकल एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि जो ट्रेजिडी बोलते हैं कि जो ये कॉमन है फ्री राइडर है, जैसे नॉर्थ बात करते हैं टोटल एमिशन के बारे में, जो साउथ कंट्री बोलते हैं एमिशन पर पर्सन के बारे में। अब आते हैं हम environmentalism in India. The oldest and simplest form of the nature worship find expression in the Vedic text. In example, Earthveda Prithvi Sukta, it had been declared the Mati Bhuma Puruttam Prithviha. Earth is my mother and I am her son. Dr. Junior Norman Locker in his book Drone of Astronomy argues the Vedic society was the first environmental protection society in the history of the mankind. According to Rig Veda, the human body is made of the Panch Mahabhut, 5 elements of nature, Akasa, Vayu, Teja, Prithvi, and therefore it can be concluded that Indian culture has remained aligned with the nature. हमें देखने को मिल जाता है इन्वायरमेंटलिज्म पहला, जैसे कि अर्थवेद में पृथ्वी सूक्ता देखने को मिलता है जो बातें करता मातृ भूमि पुरुषोत्तम पृथ्वी, मतलब अर्थ धरती मेरी माँ और मैं उसका लड़का बच्चा हूँ। और इन जूनियर नॉर्मल लॉकर बात करते हैं अपनी किताब में ड्रोन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये जो बात करते हैं वैदिक सोसाइटी द फर्स्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वैदिक सोसाइटी पहली सोसाइटी है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है 5 महाभूत की बनी हुई है, आकाश, वायु, पृथ्वी, और कंक्लूड कर इंडियन कल्चर रिमेन अलाइंड विद द नेचर। Constitution and the environment in India, environmental governance is a multi-layered, multi-dimensional. First, environmental protection is a concern for legislature, executive as well as judiciary. Second, union and state legislature are responsible for the protection of environment because subject lies in the concurrent list. 42nd Amendment. Even the panchayat have been responsible to soil conservation, environment and water management as mentioned in the 11th schedule. Third, environment protection find expression through the fundamental right, particularly आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 जो हमें इन्वायरमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल सकता है। पहला कंसर्न है वो जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और सेकंड है हमारे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन लाई करने, जो सब्जेक्ट जो लाई करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। सेकंड 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था, ठीक है। पंचायत रिस्पॉन्सिबल सोइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, और जो हमारे मेंशन 11th शेड्यूल में है। थर्ड आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। The liberal interpretation of the Article 21 also include right to clean environment, a directive principles to Article 47 improving the public health, and Article 48 protection and improvement of the forest and wildlife, provide the directive to government for protecting the nature. Even the fundamental duties under Article 51A 42nd Amendment declares that it is the duty of every citizen to protect, improve the natural environment. Fourth, there are multiple laws like the Environment Protection Act, Air Pollution Control Act for the protection of the nature. लिबरल इंटरप्रिटेशन बात करता है मैं मिलना चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे आर्टिकल 47 जो बात करता है इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 48A जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे वो DPSP है। इवन द फंडामेंटल ड्यूटी भी बात करती है इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे आर्टिकल 51A जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड की थी, जो डिक्लेयर करती है हर सिटीजन की ड्यूटी को नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। और काफ़ी लॉस है जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, और जो बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर की। Even the Supreme Court has emerged an important pillar for environmental protection through its remarkable judgment. For example, Bhopal Gas Strategy 1989, the court gave the doctrine of absolute liability and enterprises harming the nature shall be obligated to pay for the compensation. और थर्ड आता है MC मेहता केस 1986, court emphasized on the public trust doctrine. Some natural resource like water, air, forest cannot be under the private ownership. कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटजी में बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मतलब जिसने आम नेचर किया उसको ही कंपनसेट करना पड़ेगा। और MC मेहता केस 1996 का कोर्ट एम्फेसाइज करता है द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पे। सम नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर या फॉरेस्ट इनको हमें प्राइवेट ओनरशिप के अंडर नहीं डाल सकते हैं। Therefore, we can conclude that environment protection is not just an obligation of the state but also for citizens.
Supreme Court has clearly said a right against climate change, a fundamental right. Ideological trend क्या environmentalism है. At present, we can identify broadly three ideological trend environmentalism. First, Madhav Gadgil की, Ramchandra Guha की figured land Gandhi ideology, which rejects the modern and Western way of life based on Indian tradition. Illogical Marxism है ecological, which argues that both rich and poor as will destroy the nature. However, because of unequal access to resource, the former exploit the rich for the sake of profit and later for the survival. इको मार्क्सिज्म बात करता है कि मतलब कि रिच और पुअर ने दोनों ने नेचर को डिस्ट्रॉय करा, एक को अनइक्वल में ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे, दूसरे ने कुछ सर्वाइवल के एक्सप्लॉइट किया. साइंटिफिक कंजर्वेटिविस्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, साइंस कैन give the solution for sustainable development by providing the socio-technical alternative है. मतलब साइंटिफिक कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं कि साइंस प्रोवाइड कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोशो टेक्निकल अल्टरनेटिव बता सकता है. कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न environmentalism है. रामचंद्र गुहा, सुनीता नारायण have compared the Indian environmentalist movement with that the West. Ramchandra Guha in his book How Much Should a Person Consume argues that in India there is no single unified homogeneous environmental discourse है. हमें कंपैरिजन करना इंडियन और वेस्टर्न इन्वायरमेंटल के जो दो मेन राइटर है रामचंद्र गुहा और सुनीता नारायण, जो कंपेयर करते हैं इंडियन इन्वायरमेंटल मूवमेंट को वेस्ट के साथ. रामचंद्र गुहा अपनी किताब के हाउ मच ए पर्सन कंज्यूम आर्ग्यू करते बताते हैं कि कोई एक सिंगल यूनिफाइड इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स नहीं है. ही कॉल्स दिस एज ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म को बोलते हैं. इंडियन मूवमेंट डिफर फ्रॉम द वेस्ट इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी, मैथोडोलॉजी, पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जेक्टिव है. जो इंडियन का मूवमेंट डिफर करता है वेस्ट, उसकी आइडियोलॉजी में, मैथोडोलॉजी में, पार्टिसिपेंट में और ऑब्जेक्टिव में. इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्ट, जो वेस्ट इन्वायरमेंटल है, वेस्ट इंडियन इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो मिलता है ट्राइबल से है, रूरल पार्ट पॉपुलेशन से है, जिसका ऑब्जेक्टिव रिलीजियस और कल्चरल है. और दे अडोप्ट मोस्टली गांधीयन आइडियोलॉजी and are the generally short-lived. Temporarily he calls Indian movement as a temporarily stomach movement, वो temporarily stomach movement बोलता है. Similarly, Sunita Narayan argues that Indian environmental movement have the fire fighting approach. He calls Western environmentalism as a protection environmentalism and the Indian environmentalism utilitarian environmentalism. तो मोस्टली जो गांधीयन आइडियोलॉजी है शॉर्टली कुछ मैं देख लेती हूँ, खाली में उनको वो बोलता है खाली पेट की तरह है मूवमेंट है. सुनीता नारायण बोलती है फायर फाइटिंग अप्रोच ही, और जो बोलती है वेस्टर्न इन्वायरमेंटलिज्म प्रोटेक्शनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म है, और इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म को बोलती है यूटिलिटेरियन इन्वायरमेंटलिज्म है. और उसके बाद आती है इसकी अप्रोच ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंटल मूवमेंट. पहला फेज स्टार्ट होता है 1950 से लेकर 1960s में. ठीक है, अब बात है these years have been referred as the age of ecological innocence. Neither people nor the leadership were aware about environmental degradation. Under the Nehruvian economic model, environmental protection was a concern but not a propriety. Environmental protection was self-sufficiency were main objective. Therefore, no environmental movement can be observed during this phase. कोई फेज नहीं करता. पहला सेकंड फेज आता है 1970 से 1980. Environmental movement during these years can be considered as a turning point in India environmentalism, even at the global level. many जो रेफर किया जाता है जैसे कि, और इसको बोल जाता है एज ऑफ इकोलॉजिकल इनोसेंस बोल जाता है. ना पेपर ना लोग इनोवेशन मतलब कि, और ना लोग और ना लीडरशिप अवेयर थी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की. वो बात कर रहे हैं 1950 और 1960s की. और नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल में था प्रोप्राइटी प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में मतलब कंसर्न थे, प्रोप्राइटी नहीं थे. ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट सब सेल्फ एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव था. नो कोई बड़ा मेन वो मूवमेंट नहीं हुआ था. और 1970s में थी ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हो गया था. अब आते हैं डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फेज फॉर द एग्जाम्पल. पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम 1972. The then Prime Minister of Indira Gandhi highlighted the need for poverty alleviation for the protecting the. अब हम फेज मिलते हैं 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है. इंदिरा गांधी जबकि प्रधानमंत्री बात करती है पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में.
फॉर द प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। 1972 में लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश होती है जो डिस्कस करती पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ अंटिल द लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्स है। इट कंक्लूड अ चेंज इन रिसोर्स कंजम्पशन पैटर्न शाल बी रिक्वायर्ड। हमें कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, इस रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। 1987 का है जो स्टार्ट होता है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, टाइटल और कॉमन फीचर रिपोर्ट वो पब्लिश होता है। अब चौथा आता है टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फेज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट होती है 1992 में, गेव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्री टू यूनाइट फॉर एनवायरमेंटलिज्म आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। वो बात करते हैं एनवायरमेंटल कोल्ड वॉर के बाद सारे यूनाइट एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। इवन इंडिया वॉज नॉट अनटच्ड बाय द वे ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एंड देयर वर पैरेलल इवेंट हैपनिंग इन इंडिया भी इससे बच नहीं पाई थी। उसमें इंडिया में भी काफ़ी क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल के मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। और बात करते हैं 1987 की कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई थी। अब 1973 में आती है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है जो बात करता है मतलब टाइगर्स को हमें बचाना चाहिए और हम कैसे बचाने के लिए उनके हैबिटेट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग द बंगाल टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, तो बंगाल टाइगर को उसी के उनमें बचाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ये इस बारे में था। फिर आती है दूसरी है रिपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, टाइटल अ चार्टर फॉर लैंड वॉज पब्लिश हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब फिर थर्ड आता मतलब कि रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर के बाद जिसका टाइटल होता है अ चार्टर फॉर ए लैंड, जो हाईलाइट करती है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द इकोलॉजिकल ग्रीन रेवोल्यूशन के इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश होता है 1980s में, ठीक है। फोर्थ आता है 42nd अमेंडमेंट 1976 brought multiple changes in the direction of the environment governance in India। 42nd अमेंडमेंट से हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो इंडिया में हो रहे थे उसी फेज के टाइम अकॉर्डिंग हमें मिलता है। even the PIL was helpful in promoting the environmental movement in India। काफ़ी ज़्यादा PIL देखने को मिलती है जो हमारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट को बचाने में हेल्पफुल करती है। कोर्ट हमारा इसमें पूरा प्रयास करता है, सुप्रीम कोर्ट जो कि हमें PIL एक्सेप्ट करता है और हमारे इसको मूवमेंटों को बचाने में हेल्प करता है। जस्टिस कुलदीप सिंह इकोलॉजिकल वो था। अब आते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कैन बी कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इको फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। जो चिपको मूवमेंट हमारी इको फेमिनिस्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मूवमेंट है। इट स्टार्टेड फ्रॉम चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल से स्टार्ट होता। प्रोटेस्टर अडोप्टेड नॉन वायलेंट गांधीयन मेथड। जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने अडोप्ट किया था नॉन गांधीयन वायलेंट मेथड था, नॉन वायलेंट गांधीयन मेथड। आइडिया वॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इवन एट द कॉस्ट ऑफ वन ब्लड एंड लाइफ। उनको एक ही मकसद था एनवायरमेंट को बचाना, किसके उसमें ब्लड और बोन्स के उसमें मतलब अपनी पूरी प्रयास करना था उनका। द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय सिमिलर प्रोटेस्ट इन राजस्थान। सिमिलर प्रोटेस्ट से इंस्पायर्ड हुए थे राजस्थान में वेयर द मेंबर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी लेड बाय अमृता बिश्नोई सेक्रीफाइस ए लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग खिजड़ी। जैसे खिजड़ी ट्री के बचाने पर जान दे दी। तो चिपको मूवमेंट वो एक्सपैंडेड टू एंटायर रीजन और पूरे रीजन में फैल गया था टू द बिकम ए सेफ हिमालयन मूवमेंट हो गया था। दिस मैथोडोलॉजी हैज़ बीन अडोप्टेड इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री। सिमिलर जो आइडियोलॉजी मेथड था वो अडोप्ट किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। 1983 में अपीको मूवमेंट था बाय पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े ने किया था। सिमिलर एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है इन 2017 में। सिमिलर मैथोडोलॉजी वॉज अडोप्टेड इन द नॉर्थ फोर्थ परंग्यास इन वेस्ट बंगाल। सिमिलर मैथोडोलॉजी अडोप्ट की थी हमने वेस्ट बंगाल में। और दूसरा एग्जांपल इवन इन जापान पीपल प्रोटेस्टेड थ्रू द चिपको मूवमेंट अगेन द बिल्डिंग अ टनल इन द माउंट काओ में भी 2009 में हो रही थी, उसमें भी जापान के लोगों ने ऐसे प्रोटेस्ट किया था। वंदना शिवा इन हर बुक स्टेइंग अलाइव एनालाइज द मूवमेंट फ्रॉम इको फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। वंदना शिवा अपने बुक में स्टेइंग अलाइव में वो एनालाइज करती इको फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से। फॉर हर Chipko movement was struggle to recover to invisibles like that is right of woman and value of nature. It was a protest against the mal development। ये मूवमेंट था रिकवर करने के लिए इंडिविजुअल जैसे राइट ऑफ वुमन के बारे में, वैल्यू नेचर की वैल्यू को करने के लिए, और ये अगेंस्ट मालिफाइड डेवलपमेंट के बारे में। सिमिलरली द रामचंद्र गुहा इन हिज बुक
यूनिकिट वुड्स कॉल्स द चिपको मूवमेंट ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म इन इंडिया। रामचंद्र गुहा अपने बुक यूनिकिट वुड्स में लिखते हैं कि जो चिपको मूवमेंट का ओरिजिन था मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में बात करते हुए इंडिया में हुआ था। ही हाईलाइट द चिपको मूवमेंट मार्क्स द जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिज्म के बारे में बात कर थ्रू विच कंसर्न फॉर एनवायरमेंट वाज ब्रॉड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द सेंटर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्बन मिडिल क्लास, मतलब जो अर्बन मिडिल क्लास की कॉन्शियसनेस को जागृत कर दिया था। ये एनवायरमेंटल जर्नलिज्म का जेनेसिस के बाद होता है। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड पेज। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म द एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया हैज लॉस्ट इट्स फोकस। एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारे एनवायरमेंटल मूवमेंट में अपना फोकस खो दिया था। क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट नेक्सस बिटवीन द capitalist politician and bureaucrat have resulted in a kind of infrastructure development ecological sensitive area। मतलब ब्यूरोक्रेट नेक्सस बन गया था पॉलिटिशियन और कैपिटलिस्ट और ब्यूरोक्रेट का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे। द मूवमेंट हैज़ बीन ट्रैप्ड इन द क्लासिकल डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट। जो हमारे जो मूवमेंट बीच में फंस गया था, क्लासिकल डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर एनवायरमेंटल डिबेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे करती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था उसने एनवायरमेंटलिज्म के बारे में। मतलब गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में साथ करना चालू कर दिया था और एनवायरमेंट को मतलब सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन पे। वी कैन कंक्लूड विद द गांधीयन विजडम विद द राइटली सेज दैट द नेचर इज इनफ फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। गांधी सही कहा है कि हम नेचर के पास हमारे नीड के लिए सब कुछ है, हमारे ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।